Namaskar to all of you. Again, I am Asit Governmental Guru. Again, I am coming back to my channel. So, my friends, please subscribe my channel, share my channel, and like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Today, I will discuss Government e-Marketplace GeM MCQ 1, first MCQ with explanation. In this part I will discuss 20 MCQs, very important MCQs. Those MCQs would be useful for all type of central government exams, and also with explanation. I will discuss the key features and benefits. So overall, very concisely, I tried to discuss GeM in my first part, then other things I will cover in my second part. So my friends, please subscribe my channel, and you see my WhatsApp number 8327782034. If you need PDF, then contact with me in my WhatsApp number. My Telegram channel link is t.me/bapi2034. Also, in description of my video, Telegram channel link is there. Please join it so that you can get my update videos. So now I do not want to waste more time. Now I am going to discuss Government e-Marketplace first MCQ, 20 MCQs with explanation. You see the question number 1. What are the benefits of GeM? क्वेश्चन में बेनिफिट्स ऑफ GeM के ऊपर पूछा है. 4 ऑप्शंस गिवन. प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड स्पीड इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट. तो एक बेनिफिट है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जो GFR 149 में, नाउ यू नो प्रोक्योरिंग एंटिटीज़, गवर्नमेंट एंटिटीज़, बेसिकली ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, state government, PSUs, state and central, autonomous bodies, statutory bodies, local bodies, they can procure goods and services. It is mandatory for them to procure goods and services from the GeM portal. If it is not available in the GeM portal, they can purchase from outside. But if the goods and services are available in GeM portal, then it is mandatory for them to purchase it. This clearly mentioned in GFR rule 149. So due to this online market portal, it is transparent one, efficient one, and also very speedy in public procurement. First one is one of the benefit. Lower prices or end to repetitive tendering. ये GeM के वजह से अभी जो बिडिंग इनवाइट होता था रिपीटेड मैनर, वो नहीं होगा. देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ टेंडरिंग एंड ऑल्सो लो प्राइसेस. नाउ गवर्नमेंट प्रोक्यूरिंग एंटिटीज, दे कैन कलेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज एट लो प्राइसेस because registered suppliers are there in GeM portal, and very steep competition is there among the sellers. Okay, so for this reason, now government entities, they can procure goods at low prices. It is also another benefit. Support Make in India campaign, also it is also correct one. और lower administrative and transaction cost. तो पहले ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा था, जो बेसिकली टेंडर प्रोसेस में, तो अभी वो कम हो गया. ये भी एक बेनिफिट है. तो यहाँ पर जो आंसर है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन. ऑप्शन डी इज़ द आंसर. सो ऑल आर द बेनिफिट्स. जो ऑप्शन ABC में है, ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ GeM, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज ऑप्शन डी. व्हाट डज EMD स्टैंड फॉर? अर्लियर मनी डेबिटेड, इजी मनी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट. ये करेक्ट है, अर्नेस्ट मनी डेबिटेड. तो आंसर इज बीट सी. EMD के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ. अभी GeM पोर्टल में
जो ई बिडिंग है, ई बिडिंग और इन रिवर्स ऑक्शन टूल, ओके, और इन RA रिवर्स ऑक्शन टूल ग्रेटर देन 5 लाख, ग्रेटर देन 5 लाख ई बिडिंग और इन रिवर्स ऑक्शन टूल. सो जब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन 5 लाख, तब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो बीड सिक्योरिटी होता है देना पड़ता है. तो EMD बीड सिक्योरिटी में कोई डिफरेंस नहीं है. हम जानते हैं कि बीड सिक्योरिटी जब बीडिंग इनवाइट होता है तो बीड सिक्योरिटी देना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या है, बीड सिक्योरिटी देने से हम बीड को, जो बीडर से बीड को विथड्रॉ नहीं कर सकता, कि बीडिंग में कोई चेंज नहीं कर सकता. तो बीडिंग को विथड्रॉ करता है और बीडिंग में कोई चेंज करता है तो उसका जो EMD है और बीड सिक्योरिटी है वो फॉरफिट हो जाता है, नहीं कि वैसा ही यहाँ पे जेम पोर्टल के ऊपर हम जानते हैं जब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन 5 लाख, देन procuring entities procure goods through e-bidding or reverse auction tool, and in that case actually it means EMD, okay, collected from the registered sellers available in the ZIM, right? तो यहाँ पर जो आंसर है बीट C है. चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज क्रैक स्टैंड फॉर? कंसाइनी रिसिप्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, ये करेक्ट होगा. कंसाइनी रिजेक्टेड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, कंसाइनी रिसिप्ट एग्रीमेंट सर्टिफिकेट, नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर जो ऑप्शन है फर्स्ट वन इज करेक्ट वन. इट इज कंसाइनी रिसिप्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, राइट. ये जो कंसाइनी रिसिप्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट क्या है, जो कंसाइनी है उसका काम है जब गुड्स रिसीव हो जाएगा, गुड्स डिलीवर हो जाएगा, जब सेलर्स डिलीवरी दे देगा उसको कंसाइनी क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा. रिसीव करने के बाद जिस डेट में रिसीव होगा 10 डेज के अंदर ये जो कंसाइनी रिसिप्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट वो जनरेट होगा. समझ में आ रहा है? जिस डेट में रिसीव होगा गुड्स, ओके, तब कौन रिसीव करेगा? कंसाइनी. कंसाइनी का जो मेन काम है यही है, क्योंकि जो सेकेंडरी यूजर्स है, सेकेंडरी यूजर्स का 4 रोल्स होता है. एक बायर है, एक कंसाइनी है, एक DDO है और एक PAO है. DDO ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, PAO पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर. बायर, कंसाइनी, DDO एंड PAO, ये 4 रोल्स होता है सेकेंडरी यूजर्स. तो कंसाइनी का काम है वो गुड्स को रिसीव करेगा. जिस डेट में वो रिसीव करेगा 10 डेज के अंदर क्रैक को जनरेट किया जाएगा, कंसाइनी रिसिप्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो ये जो इसका जो फुल फॉर्म है वो कंसाइनी रिसिप्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, उसके ऊपर भी थोड़ा हमें बता दिया आपको. तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन A है, राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 4, हु जनरेट्स कंट्रैक्ट ऑन जेम? बायर, सेलर, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर. हु जनरेट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन जेम? सो यहां पर जो आंसर होगा बायर होगा. मैं अभी बोला था जो सेकेंडरी यूजर है, सेकेंडरी यूजर 4 रोल्स होता है. एक बायर है, कंसाइनी है, एक DDO है और एक PAO है. सो हु जनरेट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन जेम? इट इज बायर. ठीक है, तो बायर का काम है वो ऑर्डर को प्लेस कर देगा. ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट का जनरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बायर का काम है, वो प्लेस कर देगा ऑर्डर को. कंसाइनी का काम है वो ऑर्डर को रिसीव करेगा और जिस डेट में रिसीव करेगा उसका 48 आवर्स के अंदर उसको प्रोविजनल रिसिप्ट सर्टिफिकेट इशू करेगा. 48 आवर्स में विद इन दिस डेट में कंसाइनी वो गुड्स को रिसीव करेगा. विद इन 48 आवर्स
उसको क्या जनरेट करना होगा? प्रोविजनल रिसिप्ट सर्टिफिकेट, PRC। और जिस डेट में वो गुड रिसीव करेगा उसका 10 डेज के अंदर, विदिन 10 डेज क्रैक इशू होगा, कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। ये बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है वो बायर का काम है, बायर का काम है ओनली ऑर्डर प्लेस करेगा। और सेकेंड जो है कंसाइनी का काम है, वो गुड को रिसीव करेगा, जिस डेट में रिसीव करेगा 48 आवर्स के अंदर उसको PRC जनरेट करना होगा, प्रोविजनल रिसिप्ट सर्टिफिकेट। और जिस डेट में वो गुड रिसीव करेगा उसका 10 डेज के अंदर वो क्रैक जनरेट करेगा, ठीक है। और DDO का काम है, DDA वो जो PFMS है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में पेमेंट होता है, वो इशू कर देगा PAO को, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर को वो दे देगा कि PFMS में पेमेंट किया जाए। ये DDO का काम है। DDO मेनली PFMS का बात आता है तो DDO उसको रेकमेंड करेगा PFMS के माध्यम से पेमेंट करने के लिए। DDO शुड रेकमेंड टू मेक पेमेंट थ्रू PFMS। और जो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर में बताया, DDO रेकमेंड करेगा कि PFMS में पेमेंट किया जाए और PAO पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर उसको पेमेंट करेगा। और अदर साइड में यदि PFMS के अलावा सपोज थ्रू नेट बैंकिंग में पेमेंट होगा कि ऑफलाइन में पेमेंट होगा, तो वहाँ पर जो पेमेंट होगा वो थ्रू PAO होगा, ठीक है। अदर केस में PAO, मगर PFMS में DDO का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो सेकेंडरी यूजर्स है, 4 बायर, कंसाइनी, PAO एंड DDO बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आगे में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, चलो आगे में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच GFR 2017 रूल इज एप्लीकेबल फॉर JAM? ऑप्शंस गिवन, रूल 162 नहीं, गलत है, रूल 249, रूल 100, रूल 149। एक्चुअली आप देख लीजिए, GFR जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 जो 149 है उसमें JAM के ऊपर दिया गया है। और इसमें क्लियरली मेंशन है कि those type of goods and services available on JAM, it is mandatory for the government procuring entities to procure goods and services from the JAM. It is mandatory. यदि जो JAM पोर्टल में अवेलेबल नहीं है तब आउटसाइड से परचेज करना है, और JAM पोर्टल में है मीन्स इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट प्रोक्यूरिंग एंटिटीज टू प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द JAM। ये क्लियरली मेंशन है 149 में, रूल 149 JAM के ऊपर है, राइट। तो यहां पर आंसर ऑप्शन डी है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इन JAM डायरेक्ट बाइंग कैन बी अडॉप्टेड फॉर परचेज ऑर्डर्स इन द रेंज। एक डायरेक्ट परचेज का बात, DP का बात आएगा। JAM में डायरेक्ट परचेज अप टू 25,000, अप टू 25,000। इसके ऊपर मैं थोड़ा बता देता हूं आपको JAM पोर्टल से डायरेक्ट परचेज करना है, उसका जो रेंज है अप टू एस्टिमेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, एस्टिमेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज अप टू ₹25,000। ये डायरेक्ट परचेज होगा, कोई भी रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज किया जाएगा, मगर अप टू ₹25,000। मगर वहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन लिया जाएगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन लिया जाएगा, आपको याद रखना है। और डायरेक्ट परचेज है तो एस्टिमेशन कितना होगा, अप टू ₹25,000 जो वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये डायरेक्ट परचेज में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, डायरेक्ट बाइंग बट डायरेक्ट परचेज ये है, क्योंकि जो आगे में चलेंगे डिफरेंट वेज में परचेज किया जाता है। एक डायरेक्ट परचेज है, एक L1 है, आगे में डिस्कस करेंगे L1, और एक ई बिडिंग है, और एक ई बिडिंग है, और एक रिवर्स ऑक्शन टूल से। इसका रेंज आगे में सब हम डिस्कस करेंगे। ये 4 वेज में परचेज किया जाता है, प्रोक्योर किया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्ट परचेज, L1 जो लोएस्ट प्राइस परचेज, ई बिडिंग एंड रिवर्स ऑक्शन आगे में डिस्कस करेंगे। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
मैंडेटरी प्राइस कंपैरिजन का बात आ गया। अमोंग्स्ट 3 सेलर्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर परचेज ऑर्डर्स इन द रेंज। यहाँ पर L1 का बात आ गया, मैं अभी बताया था, जो लोएस्ट प्राइस रेंज आ गया उसका जब रेंज होगा अबोव ₹25,000 एंड अप टू ₹5 लाख, ये करेक्ट है। जो L1 बाइंग होगा ना, L1 बाइंग मीन्स वो लोएस्ट प्राइस बाइंग है, तो रेंज होगा मोर देन 25,000 एंड अप टू ₹5 लाख। इसमें क्या होगा, एटलीस्ट 3 रजिस्टर्ड सप्लायर्स को चूज करना पड़ेगा। जेम पोर्टल से कंसर्न गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी को एटलीस्ट 3 रजिस्टर्ड सप्लायर्स को चूज करना पड़ेगा। उनका प्राइस को कंपेयर किया जाएगा, जिसका लिस्ट प्राइस होगा उससे प्रोक्योर किया जाएगा। समझ में आ रहा है? मगर यहाँ पर जो एस्टिमेटेड वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज का मोर देन 25,000 एंड अप टू ₹5 लाख, इसको L1 बाइंग बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है ना, एटलीस्ट 3 सेलर्स ये दिया है ना, अमोंग्स 3 सेलर्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर परचेज ऑर्डर्स इन द रेंज, ये दिया है 3 सेलर्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर क्या है, एटलीस्ट 3 सेलर्स को चूज किया जाएगा और उनका प्राइस को कंपेयर किया जाएगा और जिसका लोएस्ट प्राइस होगा उससे प्रोक्योर किया जाएगा जेम पोर्टल से। ठीक है, तो इसको L1 बाइंग हम बोलते हैं। हो गया क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। बाइंग आइदर थ्रू बीडिंग और रिवर्स ऑक्शन, मैं अभी बताया था, और 4 वेज एक्चुअली वी कैन प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज। एक है डायरेक्ट परचेज हो गया, L1 बाइंग हो गया, और बीडिंग और ये आ गया रिवर्स ऑक्शन। इज मैंडेटरी फॉर परचेज ऑर्डर्स इन द रेंज। जब रेंज होगा अबव ₹5 लाख, जब रेंज होगा, जो रेंज है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा अबव ₹5 लाख, तब इस केस में बीडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, फॉर परचेज ऑर्डर्स, राइट। सो ई बिडिंग, आइदर ई बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल को अडॉप्ट किया जाएगा टू प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द जेम पोर्टल। और यहाँ पर जो रेंज है मोर देन 5 लाख होगा, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हु कैन रिजेक्ट कंसाइनमेंट? बायर, सेलर, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। तो 4 ऑप्शन है, तो रिजेक्ट कंसाइनमेंट सेलर, ऑप्शन बी करेक्ट है। जो कंसाइनमेंट है उसको रिजेक्ट कर सकता है सेलर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPPP? CPPP का फुल फॉर्म सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, यही करेक्ट है। सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट फॉर पीपल रॉन्ग है। कॉर्पोरेट पब्लिक पॉलिसी एंड प्रमोशन, क्राइम प्रिवेंशन पार्टनरशिप, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। इट इज सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। CPPP के ऊपर मैं थोड़ा बता देता हूँ। आप GFR जनरल फाइनेंशियल रूल में आप देखा होगा, इट इज क्लियरली मेंशन दैट एवरी टाइम व्हेन द एनी गवर्नमेंट एंटिटी want to invite the bid, then bidding documents should be published in central public procurement portal। जब कोई गवर्नमेंट एंटिटी वो बिडिंग इनवाइट करेगा तो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को वो अपलोड करेगा कहाँ पर? CPPP में, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में। ठीक है, सो खुद का वेबसाइट में अपलोड करेगा और CPPP ये एक पब्लिक पोर्टल है, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, उसमें बिडिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा और जो सप्लायर्स है वो फ्रीली वो CPPP पोर्टल से वो डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड करके वो फिर फिलअप करके वो फिर अपलोड करेंगे, क्योंकि बिडिंग का जो ओपनिंग डेट है और लास्ट डेट होगा उसी के अंदर वो फिर अपलोड करेंगे। और किसको अवार्ड दिया जाएगा इसके ऊपर भी थोड़ा बता देता हूँ। जब फाइनली जिसको बीड अवार्ड कर दिया जाएगा, एक सेलर को तो अवार्ड किया जाएगा ना,
तो वो सेलर किसको अवार्ड किया गया वो भी फिर पब्लिश होगा CPPP में कि दिस गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी अवार्डेड द बीड टू द पर्टिकुलर सप्लायर, वो भी डिक्लेयर होगा CPPP में। तो सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, ओके, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPPP। आंसर इज BT। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11। टू स्टेटमेंट्स गिवन, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट वन। हम करेक्ट स्टेटमेंट्स देखेंगे। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न अभी आ रहा है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज द नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल ऑन एंड टू एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, central and state public sector undertakings, autonomous institutions and local bodies for procurement of common use goods and services। ये करेक्ट है क्योंकि आप जानते हो all central government ministries and state government ministries, their departments, central and public sector undertakings, autonomous institutions, local bodies, so they must, it is mandatory for them to procure common use goods and services from the JAM portal। and JAM portal is a national public procurement portal and end to end online marketing। end to end online marketing, आप ऑर्डर प्लेस करोगे, प्रोसेस करोगे, प्लेस करोगे और पेमेंट तक एक ही पोर्टल में होगा। और एंड टू एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस %। ओके, तो फास्ट जो ऑप्शन है इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर एक्चुअली सपोज आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि which entities actually they can procure goods and services from the JAM portal? All central government and state government ministries or departments, all central and state autonomous bodies, okay, statutory bodies, local bodies, okay, they can procure common use goods and services from the JAM portal। Next one, another second one, the JAM portal is owned and managed by JAM SPV। इसको याद कीजिए, अभी कौन मैनेज कर रहा है? JAM स्पेशल पर्पज व्हीकल, SPV स्पेशल पर्पज राइट व्हीकल, इसका फुल फॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्पेशल पर्पज व्हीकल। सेक्शन 8 में आप देखिए कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8 में मेंशन है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नॉन प्रॉफिट कंपनी, ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो JAM पोर्टल को पूरा कंट्रोल करता है। तो JAM पोर्टल कंट्रोल, मैनेज, ऑर्गेनाइज बाय द JAM SPV। ओके, इट इज क्लियरली मेंशन दैट इन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8 you see JAM स्पेशल पर्पज व्हीकल, one of the non-profit company, okay, it means registered under the Companies Act, and its role is to manage, control and organize, okay, all the informations related to the JAM। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? ये भी करेक्ट है। JAM SPV ऑपरेट्स, मॉनिटर्स, ये अभी मैं बोला JAM SPV operate JAM, monitors actually what type of activities are going on in JAM portal. It is monitored by the JAM SPV, and also all the operations actually supervised by the JAM SPV. All the business transactions on portal through the managed service provider as per defined roles and responsibilities। तो तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी ही करेक्ट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स को आप रिमेंबर कर लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इन JAM गुड्स इंक्लूड, गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? तो JAM पोर्टल में जो गुड्स है वहाँ पर क्या क्या इंक्लूड होगा? इनकरेक्ट वन को हम डिटेक्ट करेंगे। ओके, अंडरलाइन कर दिया, इनकरेक्ट वन को डिटेक्ट करेंगे। टैंजिबल प्रोडक्ट्स लाइक सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लाइसेंसेस, पैटेंट्स और अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ये गुड्स में आएगा। जितना भी इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, ओके, ये सब सर्विस टाइप, सॉफ्टवेयर सर्विस की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सर्विस की, लाइसेंस, पैटेंट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ये सब आएगा। आर्टिकल्स ऑफ प्रोडक्ट तो आएगा ही आएगा।
works and services which are incidental or consequential to the supply of such goods, transportation, insurance, installation, commissioning, training and guarantee or warranty obligations as defined in the scope of supply given in the contract, ये भी आएगा। IT जो सर्विसेज, IT प्रोफेशनल सर्विसेज, मैन पावर सर्विसेज, ये सब सर्विसेज में आएगा, ये ओनली गलत है। फोर्थ वन, IT प्रोफेशनल सर्विसेज, मैन पावर सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये सब सर्विसेज में आएगा। तो यहाँ पर जो पूछा है इन जेम गुड्स इंक्लूड गुड्स, आर्टिकल प्रोडक्ट आएगा और जितना इंटेजिबल प्रोडक्ट्स लाइक सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर, लाइसेंस, ये सब आएगा। और जो वर्क्स एंड सर्विसेज है which are incidental or consequential to the supply of such goods such as transportation, insurance, installation, commissioning, training and guarantee, ये सब गुड्स में आएगा। मगर जब IT प्रोफेशनल का बात आएगा, प्रोफेशनल सर्विस, IT प्रोफेशनल सर्विस, मैन पावर सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये सब आएगा, ये सब सर्विसेज में आएगा। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन जो फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो गुड्स में नहीं आएगा, मैं वहाँ पर क्रॉस लगा दिया। तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। इसको थोड़ा आप याद कर लीजिए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। टू स्टेटमेंट्स गिवन, करेक्ट स्टेटमेंट्स को आपको डिटेक्ट करना है। जेम पोर्टल फॉर ऑल गवर्नमेंट बायर्स इंक्लूडिंग सेंट्रल और स्टेट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, बॉडीज एंड PSUs लॉन्च्ड ऑन 9 अगस्त 2016, ये करेक्ट है। ये जो जेम पोर्टल लॉन्च हुआ था वो 9 अगस्त 2016 में हुआ था। ये एक MCQ क्वेश्चन है, 9 अगस्त 2016, इसके ऊपर क्वेश्चन आप मिल सकता है, ठीक है। ये करेक्ट है, वो करेक्ट ही स्टेटमेंट को हमको डिटेक्ट करना है। Procurement of goods and services by ministries or department will be mandatory for goods or services available on JAM, ये भी है, अभी मैं बताया था। आप GFR रूल 149 देख लीजिए, रूल इसमें क्लियरली मेंशन है, those type of goods and services available on JAM portal, it is mandatory for the government entities to procure it only from the JAM portal. It is compulsory and it is mandatory। आपको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जेम में उपलब्ध है उसको प्रोक्योर ही करना है, ये मैंडेटरी है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, दोनों करेक्ट है, तो बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 14, जेम एम्स टू एनहांस डैश इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिवनेस, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिवनेस, ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पर जो ऑप्शन सी करेक्ट है, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिवनेस। मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो ये जो सिस्टम है बहुत ट्रांसपेरेंट है, इसमें क्लियर है कितना एक्चुअली कौन सा प्राइस में खरीदा गया, ये तो रिकॉर्ड है। एट व्हाट प्राइस एक्चुअली goods and services procured, it is clearly it means it is clearly recorded, क्योंकि पेमेंट होगा चाहे आप PFMS में करो, राइट, और जो भी है थ्रू ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो बहुत ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। जब गुड्स एंड सर्विसेज जेम पोर्टल से प्रोक्योर किया जाएगा वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। एफिशिएंसी का बात आएगा, हाई स्पीड में प्रोक्योर किया जाएगा, हाई स्पीड है, बहुत कम समय में हम प्रोक्योर करेंगे और कॉस्ट भी कम होगा। लोएस्ट प्राइस में, लोएस्ट प्राइस, हाई स्पीड, ठीक है। तो ये एक एफिशिएंट सिस्टम है। इंक्लूसिवनेस क्या है, आप अभी सपोज सिक्योरिटी हायर करोगे, इफ़ यू वांट टू हायर एनी IT प्रोफेशनल सर्विस कि एनी मैन पावर सर्विस कि सिक्योरिटी सर्विस, ये भी आप हायर कर सकते हो जेम से, जो आउटसोर्सिंग कहा जाता है। अभी हम सिक्योरिटी सर्विस आउटसोर्सिंग में हायर करेंगे कि हमको व्हीकल्स हायर करना है, हायर व्हीकल्स, हायरिंग सिक्योरिटी पर्सनल कि एनी टाइप ऑफ मैन पावर कि IT प्रोफेशनल का हेल्प लेना है, हमको जेम पोर्टल से हम अभी हायर कर सकते हैं। तो इंक्लूसिवनेस, ओके, ये भी इंक्लूड है। तो अभी हम एक्चुअली कोई ऐसा
इट मीन्स बाहर से हम नहीं कर सकते, अभी जेम पोर्टल में ये भी उपलब्ध है। तो ये तो तीनों आ गया, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिवनेस। तो इट एनहांस एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिवनेस इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 15 अंडर GFR mandates ministries or departments can procure themselves only such items that are not available on JAM। ये क्लियरली मेंशन है, आप देख लीजिए GFR 147 में क्लियरली मेंशन है, क्योंकि जो जेम पोर्टल में अवेलेबल है उसको मैंडेटरी प्रोक्योर करना है। इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटीज टू प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द जेम पोर्टल। if in the JAM portal goods and services are not available, then it can procure from outside। तो ये GFR 147 में क्लियरली मेंशन है। 149 क्या बोला था? 149 जेम के ऊपर डिस्कशन किया गया है। GFR 149 में जेम के ऊपर डिस्कस किया गया है। यहाँ पर क्या है ना, दोज टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन जेम पोर्टल, इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटीज टू प्रोक्योर इट। मगर GFR 147 क्या बोल रहा है कि यदि जो गुड्स एंड सर्विसेज जेम पोर्टल में अवेलेबल नहीं है तब हम बाहर से उसको प्रोक्योर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अंडर GFR 147 मैंडेट्स मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स कैन प्रोक्योर देमसेल्व्स ओनली सच आइटम्स दैट आर नॉट अवेलेबल ऑन जेम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 अंडर GFR डैश the credentials of suppliers on JAM will be certified by JAM SPV। the procuring authority will certify reasonability of rates। तो जो JAM SPV है वो सप्लायर्स का क्रीडेंशियल्स को चेक करेगा, उसका पास्ट रिकॉर्ड, उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसका जो डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, वो पहले जो बेसिकली सप्लाई किया था वो कितना ट्रांसपेरेंट था, वो सभी को। तो ये इट इज़ द JAM SPV का काम है, क्योंकि नाउ JAM SPV एक्चुअली मॉनिटर एंड सुपरवाइज द जेम पोर्टल JAM SPV। सो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सप्लायर्स का क्रीडेंशियल्स को चेक करेगा, वो कितना ट्रांसपेरेंट है, उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, क्या वो ठीक टाइम में गुड्स को डिलीवरी कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो ये जो मेंशन है बेसिकली 149 में मेंशन है। अंडर GFR 149 द क्रीडेंशियल ऑफ सप्लायर्स ऑन JAM विल बी सर्टिफाइड बाय JAM SPV। द प्रोक्योरिंग अथॉरिटी विल सर्टिफाई रीजनेबिलिटी ऑफ रेट्स। हम जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटी है, जो प्रोक्योरिंग एंटिटी है, हम जब प्रोक्योर करेंगे हम देखेंगे कि कैसे कम से कम प्राइस में गुड्स को प्रोक्योर, कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर किया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 17 इन JAM द परचेज ऑफ ऑटोमोबाइल्स लिमिट। तो ऑटोमोबाइल्स का लिमिट है ₹30 लाख से। ओके, और जो ऑटोमोबाइल्स का जो लिमिट है JAM पोर्टल में ₹30 लाख से, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल सकता है आगे में, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 18 अंडर GF 2 स्टेटमेंट्स गिवन, आपको इनकरेक्ट को डिटेक्ट करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। अच्छा देखेंगे, अंडर GFR 150 क्या दिया है? फॉर आइटम्स नॉट अवेलेबल ऑन JAM मिनिस्ट्रीज में रजिस्टर सप्लायर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स। वंस आइटम और सर्विसेज अवेलेबल ऑन JAM सप्लायर्स टू बी ऑन बोर्डेड ऑन JAM। अच्छा, रूल GFR जो जनरल फाइनेंशियल रूल 150 क्या बोल रहा है, यदि जो आइटम्स अवेलेबल नहीं है JAM पोर्टल में, दोज टाइप ऑफ आइटम्स आर नॉट अवेलेबल इन JAM पोर्टल, सो तब हम क्या करेंगे, आउटसाइड से परचेज करेंगे। दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन प्रोक्योर फ्रॉम आउटसाइड। इसके लिए क्या होगा ना, वो कंसर्न मिनिस्ट्री वो क्या करेगा, सप्लायर्स को रजिस्टर करेगा। ओके, खुद वो रजिस्टर करेगा। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, दे कैन रजिस्टर द सप्लायर्स बाय देमसेल्व्स, क्योंकि वो आइटम्स नहीं है, जो आइटम उनको चाहिए वो JAM पोर्टल में नहीं है, तो वो बाहर से खरीदेंगे। तो जब बाहर से वो प्रोक्योर करेंगे तब वो खुद क्या करेंगे, सप्लायर्स को रजिस्टर करेंगे। और जब JAM पोर्टल में अवेलेबल हो जाएगा
ठीक है, वंस आइटम और सर्विस अवेलेबल ऑन जेम, जब जेम पोर्टल में अवेलेबल हो जाएगा वो सप्लायर्स को जेम में वो बोलेंगे रजिस्टर करने के लिए, जेम एसपीवी को बोलेंगे उसको रजिस्टर कर दिया जाए, सप्लायर्स टू बी बोर्डेड ऑन जेम। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, ये सेंटेंस एक्चुअली ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और एक बार मैं बता देता हूँ, GFR 150 ये बोल रहा है कि जो आइटम्स एक्चुअली जेम पोर्टल में नहीं है वो आइटम्स को प्रोक्योर करने के लिए सप्लायर्स को कंसर्न मिनिस्ट्री और कंसर्न डिपार्टमेंट ने सप्लायर्स को रजिस्टर्ड खुद करेगा और वो उनसे प्रोक्योर करेगा। और जब वो आइटम्स जब जेम पोर्टल में अवेलेबल हो जाएगा तब वो सप्लायर्स को रजिस्टर्ड कर देगा जेम पोर्टल में। नेक्स्ट वन अंडर GFR 155, ये LPC के ऊपर है, लोकल परचेज कमिटी। हम जानते हैं कि लोकल परचेज कमिटी जब ये होता है कि जब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स मोर देन 25,000 एंड अप टू 2.5 लाख तक, नहीं कि ये जो रेंज में दे दिया, तो लोकल परचेज कमिटी ने क्या, लोकल परचेज कमिटी में 3 मेंबर्स होते हैं। तो वो मार्केट सर्वे करेंगे और वहाँ से कोटेशंस लाएंगे, कोटेशंस में उनका स्पेसिफिकेशन, प्राइस, ठीक है, और अदर रिकॉर्ड्स जो है, पास्ट रिकॉर्ड की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पास्ट रिकॉर्ड, डिलीवरी, ये सब चेक किया जाएगा और जिसका लोएस्ट प्राइस होगा उससे खरीदा जाएगा। मगर यहाँ पर क्या है, अंडर GFR 155 LPC में बी कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली फॉर दोज आइटम्स विच आर नॉट अवेलेबल ऑन जेम। ये भी करेक्ट है, यदि जेम पोर्टल में अवेलेबल है तब LPC का कोई ज़रूरत नहीं है, यदि जेम पोर्टल में अवेलेबल नहीं है तब LPC लोकल परचेज कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। और LPC से जो रेंज है खरीदने के लिए, एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी मोर देन 25,000 और अप टू 2.5 लाख, वो आइटम्स जेम में उपलब्ध नहीं है तब इसी रेंज में आ जाता है एस्टिमेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तब क्या किया जाएगा, LPC को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। LPC में कितना मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं। वो मार्केट सर्वे करेंगे, मार्केट से कोटेशंस लाएंगे, डिफरेंट फार्म्स का कोटेशन लाएंगे और डिफरेंट सप्लायर्स का कोटेशन लाएंगे, उनको कंपेयर किया जाएगा, उनका स्पेसिफिकेशंस, उनका क्वालिटी, उनका प्राइस, ये सब चेक किया जाएगा। और जिनका लोएस्ट प्राइस होगा, उधर तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशंस की, डिलीवरी की, पास्ट रिकॉर्ड्स, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मगर जिनका लोएस्ट प्राइस होगा उसको अवार्ड, उससे एक्चुअली खरीदा जाएगा, नहीं कि। मगर यहाँ पर दिया है कि GFR 155 में जो LPC कॉन्स्टिट्यूट होगा, यदि जेम पोर्टल में इसी रेंज के अंदर गुड्स अवेलेबल है तो देयर इज नो नीड टू कॉन्स्टिट्यूट LPC। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मगर यहाँ पर पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हुआ, नाइदर 1 नॉर 2, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो इसकी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जब आ रहा है आप फर्स्ट अंडरलाइन कर दीजिए, क्या करेक्ट करना है, इनकरेक्ट आपको डिटेक्ट करना है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है, तो वो पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, तो नाइदर 1 नॉर 2, नाइदर 1 नॉर 2 आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोक्योरमेंट ऑप्शंस अंडर जेम। तो जो प्रोक्योरमेंट ऑप्शंस है हम डिफरेंट वेज में प्रोक्योर कर सकते हैं। यहाँ पर दे दिया, देखिए डायरेक्ट परचेज है, डायरेक्ट परचेज अप टू ₹25,000, नहीं ये है फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड सप्लायर अवेलेबल ऑन जेम, कोई भी रजिस्टर्ड सप्लायर से अप टू एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अप टू ₹25,000 कैन बी प्रोक्योर्ड आफ्टर परमिशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। L1 परचेज का जो लोएस्ट प्राइस, इसमें एटलीस्ट 3 रजिस्टर्ड सप्लायर्स को चूज किया जाएगा। इसमें रेंज क्या है ना, मोर देन 25,000, ओके, अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख, है कि। तो इसमें मैं बोला था L1 लोएस्ट प्राइस जो परचेज है, इसमें क्या है, एटलीस्ट 3 रजिस्टर्ड सप्लायर्स को चूज किया जाएगा जेम पोर्टल से, उनका प्राइस को कंपेयर किया जाएगा, जिसका लोएस्ट प्राइस होगा उससे प्रोक्योर किया जाएगा। और यहाँ पर जो एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा, इज मोर देन 25,000 एंड अप टू 5 लाख। और नेक्स्ट बीडिंग, ई बीडिंग, रिवर्स ऑक्शन, ये दोनों में ग्रेटर देन 5 लाख होगा। और इसमें एक्चुअली बीड सिक्योरिटी लिया जाएगा,
जो अर्नेस्ट मनी EMD, इसी केस में EMD और बीड सिक्योरिटी इसी केस में लिया जाएगा, जो ई बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन। इसमें जब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स इज मोर देन 5 लाख होगा तब ई बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन से ओके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर किया जाएगा। ठीक है, 4 एक्चुअली करेक्ट है, यही है 4 प्रोक्योरमेंट ऑप्शंस। तो वही पूछा है प्रोक्योरमेंट ऑप्शंस अंडर जेम, तो 1 2 3 4 जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3 एंड 4। इसको याद रखिए, ये भी जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। इट वुड बी वेरी यूजफुल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। दिस टाइप ऑफ वेरी कॉमन क्वेश्चंस दे आस्क if they suppose want to collect any answer from you related to the GEM, they ask this type of questions. रिटिन जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है वाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का है, फिर उसके बाद हम कुछ थ्योरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, द गवर्नमेंट बायर्स may ascertain the reasonableness of prices before placement of order using the dash available on GEM, including the last purchase price on GEM, including the last purchase price on GEM or department's own last purchase price। तो किसको यूज, तो आप जो गवर्नमेंट बायर्स है ना, उनको जेम पोर्टल से प्रोक्योर करने से पहले उनको किस टूल्स को देखना है, किस टूल्स को फॉलो करना है, ओके वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विच टाइप ऑफ टूल्स एक्चुअली मस्ट बी फॉलोड प्रॉपरली बिफोर प्रोक्योरिंग गुड्स फ्रॉम द जेम पोर्टल। 4 ऑप्शंस गिवन, बिजनेस एवरेज टूल्स, बिजनेस एनालिसिस टूल्स, बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स, यही करेक्ट है, बैंड एनालिटिक्स टूल्स। तो ये बिजनेस एवरेज टूल्स, बिजनेस एनालिसिस टूल्स करेक्ट है, बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स ये करेक्ट है। इसी टूल को देखना है, इसी टूल को अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसी टूल क्या होगा ना, इसी टूल को अप्लाई करके आपको देखना होगा कि आपका लास्ट परचेज प्राइस क्या था। जो गुड्स आप अभी प्रोक्योर करना चाहते हो, जो प्रीवियस ईयर आप उसको प्रोक्योर किए थे, कौन सा प्राइस में प्रोक्योर किए थे। ओके, नाउ यू वांट टू प्रोक्योर द कमोडिटी, सो प्रीवियस ईयर एट द सेम कमोडिटी एट व्हाट प्राइस यू प्रोक्योर्ड, इट मीन्स एट व्हाट प्राइस इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में वही गुड को आप कितना प्राइस में प्रोक्योर किए थे, तो ये बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स में पता चल जाएगा। और आप डिपार्टमेंट्स ओन लास्ट परचेज प्राइस, तो डिपार्टमेंट्स का लास्ट परचेज प्राइस वो खुद में कितना प्राइस में खरीदा था वो भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स को फॉलो किया जाएगा और जिसमें पता चल जाएगा कि कौन इट मीन्स जो लास्ट ईयर इसी गुड्स को प्रोक्योर किया गया था, कौन सा इट मीन्स प्राइस था, परचेज प्राइस था, और यदि डिपार्टमेंट खुद खरीदा था उसका लास्ट परचेज प्राइस क्या था, इससे पता चल जाएगा बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स। तो ये 20 क्वेश्चंस था। अभी हम कुछ चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, आप यहाँ पर देख लीजिए। GFR 147 इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्या बोला है कि यदि जेम पोर्टल में जो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तब आप बाहर खरीद सकते हो। अवेलेबल है, ये दोज गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन जेम पोर्टल, it is mandatory and compulsory for the government procuring entities to procure these and goods or these and to procure goods and services from the GEM portal। यदि GEM पोर्टल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है उसको मैंडेटरी है प्रोक्योरिंग एंटिटीज को, गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटीज को उससे प्रोक्योर करना है। मगर 147 क्या बोल रहा है, GFR जनरल फाइनेंशियल रूल 147, यदि जेम पोर्टल में जो कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तब आपको बाहर से परचेज करना है। वही मैंडेट्स मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स कैन प्रोक्योर देमसेल्व्स ओनली सच आइटम्स दैट आर नॉट अवेलेबल ऑन जेम। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ये GFR 147। 149 GFR 149 को हम देखेंगे। ये जो अभी मैं बताया था, जो जेम SPV है वो क्रीडेंशियल ऑफ सप्लायर्स को चेक करता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जेम SPV टू चेक द क्रीडेंशियल्स ऑफ सप्लायर्स, उसके मैं डिस्कस कर चुका हूँ। द प्रोक्योरिंग अथॉरिटी विल सर्टिफाई रीजनेबिलिटी ऑफ रेट्स, ठीक है, और अप टू 25,000 फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड सप्लायर डायरेक्ट परचेज से, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब डायरेक्टली यदि वर्थ ऑफ गुड्स बाय एस्टिमेशन ऑफ गुड्स इज अप टू ₹25,000
तो कॉम्पिटेंट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनका परमिशन लेके कोई भी रजिस्टर्ड सप्लायर जो जेम पोर्टल में है उनसे खरीदा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड वन, L1 बाइंग। अभी मैं डिस्कस किया था L1 बाइंग के ऊपर, जो रेंज है मोर देन 25,000, बिटवीन मोर देन 25,000 एंड अप टू 5 लाख। एटलीस्ट 3 रजिस्टर्ड सप्लायर्स को चूज करना है जेम पोर्टल से और उनका प्राइस को कंपेयर करना है और जो लोएस्ट प्राइस में देता है उससे प्रोक्योर करना है। ठीक है, अबव 5 लाख, अबव 5 लाख बिडिंग, ई बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल। मगर इसमें ऑटोमोबाइल्स नहीं आएगा क्योंकि ऑटोमोबाइल्स का लिमिट है 30 लाख, इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और 150 को मैं इसके ऊपर क्वेश्चन था, मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो भी आइटम जेम पोर्टल में नहीं है तब आपको बाहर से खरीदना है। तो कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट मिनिस्ट्री वो क्या करेगा, जो गुड्स बेसिकली जेम पोर्टल में अवेलेबल नहीं है वो उस आइटम्स को प्रोक्योर करने के लिए रिस्पेक्टिव सप्लायर्स को फर्स्ट रजिस्टर्ड करेगा। ओके, रजिस्टर्ड सप्लायर्स को, वो सप्लायर्स को रजिस्टर्ड करेगा। ठीक है, और उससे प्रोक्योर करेगा। मगर जब वो गुड्स एंड सर्विसेज जब जेम पोर्टल में अवेलेबल हो जाएगा तब वो जो सप्लायर को रजिस्टर्ड खुद किया है वो सप्लायर्स को जेम पोर्टल में रजिस्टर्ड कर देगा। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। 155 एलपीसी का बात, एलपीसी का बात कि इसमें क्या है 155 के ऊपर मैं बता देता हूँ। लोकल परचेज कमिटी, ठीक है, इसमें क्या था ना, ये जो 155 की ग्रेटर देन 25,000, ओके, अप टू 2.5 लाख आप देख लीजिए। GFR 155 में दिया है लो एलपीसी के ऊपर। यदि जेम पोर्टल में इसी रेंज के अंदर आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर करना है और जेम पोर्टल में वो उपलब्ध नहीं है तो अब एलपीसी लोकल परचेज कमेटी का हेल्प लेना है। इसके ऊपर भी मैं अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको रिमेंबर करना है। ठीक है, चलो कुछ की फीचर्स के ऊपर जाएंगे जेम का की फीचर्स है। फर्स्ट वन, एंड टू एंड सिस्टम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू पेमेंट। एंड टू एंड सिस्टम मीन्स रजिस्ट्रेशन टू पेमेंट एक ही पोर्टल के ऊपर होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड इजी ऑफ बाइंग, बहुत ट्रांसपेरेंट है और कौन सा प्राइस में उसको खरीदा गया वो पूरा रिकॉर्ड रहेगा। इसमें कोई इंटरमीडियरी पर्सन का कोई रोल नहीं रहेगा। तो ट्रांसपेरेंट एंड इजी ऑफ बाइंग। ऑप्शंस प्रोवाइड्स ऑप्शंस फॉर सर्च, कंपेयर, सिलेक्ट एंड बाय फैसिलिटी। ऑफर्स रिच लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर इंडिविजुअल कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, यहाँ पर क्या है, बहुत वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स वो उपलब्ध रहेगा जेम में। many it means sellers actually they try to sell so many substitute goods actually available, okay, in GEM portal. okay, तो आपको ओनली डिटेक्ट करना है कि रीजनेबिलिटी ऑफ प्राइस और क्वालिटी स्पेसिफिकेशन इसको चेक करके आप ओनली प्रोक्योर करना है, जो गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी को प्रोक्योर करना है। अप टू डेट यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड फॉर बाइंग, मॉनिटरिंग सप्लाईज एंड पेमेंट्स। Order process redesigned for easy of use. Option to provide multiple consignee locations and quantity after authentication. Bunching for products और services। ये सब की फीचर्स है, उसको थोड़ा याद कर लीजिए। कभी आप कोई इंटरव्यू और वाइवा फेस करोगे और ये जो पॉइंट्स है इसमें भी आपको MCQ भी मिल जाएगा, तो इसको आपको थोड़ा रिमेंबर कर लीजिए कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं सपोज इंटरव्यू और वाइवा में कि कैन यू एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ जेम। ओके, ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट ये दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिकेशन थ्रू आधार, पैन, MCA 21। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ये है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21 ये है। और रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी आधार है। आधार इट मीन्स बहुत ज़रूरी है। आधार इट मीन्स विथ आधार नंबर कनेक्टेड विथ मोबाइल नंबर, क्योंकि उसमें OTP जाएगा और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करोगे ऑनलाइन में, उसमें जो E-साइन होगा उसके लिए OTP चाहिए। सभी में E-साइन होगा, जो डिजिटल सिग्नेचर होगा, जो E-साइन होगा उसके लिए OTP जाएगा। तो आधार मैंडेटरी है और पैन तो दिया जाएगा।
और एमसीए हमारे लिए नहीं है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है। तो आपको याद रखना है जो आधार है वो कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि जो टेलीफोन नंबर है वो बेसिकली आपका आधार नंबर के साथ इट मीन्स कनेक्ट है, वो मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगा और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन में सबमिट करोगे उसमें ई साइन होगा, तो ओटीपी इसके लिए जाएगा। हाईली सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑनलाइन एंड ई साइंड, क्विक पेमेंट विद इन 10 डेज। आपको जो पेमेंट करना है 10 डेज के अंदर, क्योंकि देखिए मैं बता देता हूँ उसके ऊपर। जब कंसाइनी वो गुड्स को रिसीव करेगा तब वो क्या करेगा ना, कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट क्रैक जो है ठीक है, उसको वो क्रैक इशू करेगा, CRSC कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। तो जब गुड्स को वो रिसीव करेगा, जिस डेट में रिसीव करेगा उसका 10 डेज के अंदर उसको क्रैक को जनरेट करना पड़ेगा, कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट को जनरेट करना पड़ेगा। और जिस डेट में क्रैक एक्चुअली जनरेट होगा, जिस डेट में, उसका 10 डेज के अंदर पेमेंट होगा। क्रैक आपको याद रखना है, जो पेमेंट है जब क्रैक जनरेट होगा। तो अभी और एक बार बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन बार बार आता है। गुड्स रिसीव हुआ, कंसाइनी ने गुड्स को रिसीव किया, 10 डेज के अंदर उसको कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट को जनरेट करना पड़ेगा। जिस डेट में क्रैक इश्यू हो गया व जनरेट हो गया उसका 10 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना है, ठीक है। मल्टीपल प्रोक्योरमेंट ऑप्शंस, डायरेक्ट परचेज, L1, बिडिंग, रिवर्स ऑक्शन, उसके ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पेमेंट ऑप्शंस, बैंकिंग, PFMS, ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लीजिए। और देखेंगे जेम पोर्टल में बी यूटिलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट बायर्स फॉर ऑनलाइन परचेज एज ऑर्डर, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अप टू 25,000 डायरेक्ट थ्रू एनी ऑफ द अवेलेबल सप्लायर्स ऑन द जेम, तो इसके ऊपर थोड़ा एक एक बता देता हूँ। ये जो है अप टू 20 ये डायरेक्ट परचेज के ऊपर डिस्कस में कर चुका हूँ। और यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का फर्स्ट वन, टेक द परमिशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड सप्लायर, फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड सप्लायर अवेलेबल ऑन द जेम, उनसे आपको खरीदना है। उनका क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, ये सब डिलीवरी पीरियड, इसको चेक करना है, क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस एंड डिलीवरी पीरियड को चेक करना है, और फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदना है। और ये DP कहा जाता है, डायरेक्ट परचेज में क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स अप टू ₹25,000। नेक्स्ट वन L1 आ गया, लोएस्ट परचेज मोर देन 25,000 अप टू 5 लाख। ओके, इस केस में क्या है, एटलीस्ट 3 रजिस्टर्ड सप्लायर्स को आपको चूज करना है और उनका प्राइस को कंपेयर करना है और जो लोएस्ट देगा उससे खरीदना है, ठीक है। और ऑटोमोबाइल्स लिमिट जो है वो 30 लाख से, ठीक है। नेक्स्ट अबव 5 लाख, ये भी बता चुका हूँ। अबव 5 लाख जब होता है तब ई बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल को जाएगा। और इसमें जैसे नॉर्मली हम जानते हैं कि लिमिटेड टेंडर की, एडवर्टाइज टेंडर की 2 स्टेज बिडिंग, टू बीड सिस्टम, इसमें जैसे EMD बीड सिक्योरिटी लिया जाता है और बीड सिक्योरिटी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो लिया जाता है। क्योंकि EMD हम क्यों लेते हैं, ओके, जब हम बीड को इनवाइट करते हैं ना, वो बीडर्स क्या करते हैं, बीडिंग डॉक्यूमेंट के साथ EMD देंगे, बीड सिक्योरिटी देंगे, क्योंकि वो इट मीन्स वो बीड को विथड्रॉ नहीं कर सकते और बीड में कोई चेंज नहीं कर सकते। वो उसमें बीड को चेंज करते हैं और बीड को विथड्रॉ करते हैं, तो वो जो बीड सिक्योरिटी दिया है वो फॉरफिट हो जाएगा, नहीं कि इसमें भी वही है। आपको जेम पोर्टल में जब एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स मोर देन 5 लाख, हम ई बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन में जाएंगे, तब हम EMD भी लेंगे, बीड सिक्योरिटी और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ओके, जो सप्लायर्स रजिस्टर्ड है, जो बेसिकली ई बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे कि रिवर्स ऑक्शन टूल में पार्टिसिपेट करेंगे, उनसे लिया जाएगा। और ऑटोमोबाइल्स के लिए अप टू 30 लाख, ठीक है। तो ये था। अभी थोड़ा बेनिफिट्स देखेंगे। बेनिफिट्स क्या क्या है, प्रोवाइड्स, फर्स्ट क्वेश्चन था, प्रोवाइड्स ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, स्पीड इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नो मोर कॉम्पिटेटिव टेंडरिंग, ये G है, नो मोर कॉम्पिटेटिव टेंडरिंग,
कोई ऐसा इट मीन्स रिपीटेडली टेंडर को इनवाइट नहीं किया जाएगा, कि रिपीटेडली इट मीन्स बीड को इनवाइट नहीं किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा, और जो फाइनेंशियल जो बजट मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव होगा, लोअर प्राइसेस होगा। ये मेक इन इंडिया को सपोर्ट करता है, क्योंकि सपोर्ट मेक इन इंडिया मीन्स जो बेसिकली मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, MSE, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस है, उसमें मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस उनका जो गुड्स है वो बेसिकली जेम में उपलब्ध होता है। उसमें जो बेसिकली प्रोड्यूसर्स है, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस में जो भी प्रोड्यूसर्स है, जो भी फार्म्स है, उनका बेसिकली उनको रजिस्टर्ड कर दिया जाता है जेम में, और बढ़िया है वो इट मीन सेल करते रहते हैं गवर्नमेंट एंटिटीज़ को। तो ये सब बेनिफिट्स में आता है। ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, स्पीड इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, देयर इज़ नो रिपीटेटिव टेंडरिंग, देयर इज स्लैशिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, and very useful for financial and budget management, or goods procured at lower prices, and it supports make in India। जो स्टार्टअप इंडस्ट्रीज़ है, ओके, और जो मेक इन इंडिया कैंपेन में जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, उन्हीं सप्लायर्स को रजिस्टर्ड कर दिया जाता है जेम पोर्टल में, और वो सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सब बेनिफिट्स है, तो आपका भाईवा के लिए बहुत यूज़फुल होगा जो की फीचर्स एंड बेनिफिट्स। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जैसे कॉमन क्वेश्चंस आता है, आपको दे दिया, तो ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स, और आप भाईवा फेस करते हो, तो ये कंपलसरी इट मीन्स ऑल्सो यू कैन गेट सम क्वेश्चंस, की फीचर्स और बेनिफिट्स अबाउट द जेम, और अबाउट द डिफरेंट GFR रूल्स, डिस्कस अबाउट द जेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो फिर आप वेट कीजिए सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट में मैं पूरा ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ इट मीन्स माई फ्रेंड, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल and like my channel. Do not forget to share my channel so that others also they can get benefit. Okay, so just wait for my second part video. So आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार।